So now we will be understanding our Angular 4 application project structure. So let's say जब आपने इसको टाइप किया लोकल होस्ट 4200 पे, जब आपने अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुली कंपाइल किया तो हमको एक ये वाला पेज बन के आया लोकल होस्ट 4200 पे जो रन हो रहा है. ओके, सो दिस इज माय प्रोजेक्ट, माय फर्स्ट एप्लीकेशन. इसमें काफ़ी सारे आपको कुछ फोल्डर्स दिख रहे होंगे. द फर्स्ट फोल्डर वी हैव इज एन E2E. ये 3 फोल्डर्स आपको इसमें हमेशा दिखाई देंगे, E2E, node_modules and your src directory. This node_modules will comprises of all your libraries and header files which we are going to make a use. तो इस Angular में जितनी भी हम libraries, packages वगैरह हम यूज करेंगे ये सारी किसके अंदर होती है, आपके node_modules वाले में. इससे पहले आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा E2E करके. This E2E stands for your end-to-end testing. end-to-end टेस्टिंग. Angular 4 मैंने आपको बताया कि यूनिट टेस्टिंग पे कम्प्लीटली रिलाई करता है. तो दिस फर्स्ट फोल्डर एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 फाइल्स. एक यहाँ पर आपको दिख रही होगी app.e2e-specs.ts. दिस ts स्टैंड्स फॉर योर टाइपस्क्रिप्ट. ये टाइपस्क्रिप्ट क्या था, इट इज अ सुपर सेट ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट. ओके, इसके बाद यहाँ पर आपको एक और फाइल दिख रही होगी app.po.ts करके. अब इन दोनों फाइल्स को समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दीज फाइल्स आर. सो आई एम गोइंग टू ओपन दीज फाइल्स. Just simply click on this file. तो मेरे पास जो पहली फाइल है app.po.ts, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि what this file actually consists of. E2E का मतलब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ. This E2E stands for end-to-end testing. As your application will grow in size and complexity, it becomes unrealistic to rely on a manual testing to verify the correctness of your new features. Okay, जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स बढ़ती रहेगी, मैनुअल टेस्टिंग उसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगी. अगर आपकी एप्लीकेशन में सिर्फ 1-2 पेजेस हैं तो यू कैन डू अ मैनुअल टेस्टिंग, बट इफ इट इज कंप्राइज ऑफ 1000 पेजेस या लेट्स से 500 पेजेस, देन यू कांट गो फॉर योर मैनुअल टेस्टिंग. फॉर दिस व्हाट Angular 4 will use, it is going to make a use of end-to-end testing. Okay, this end-to-end testing is also known as your integration testing, and it is a great way to make sure that our application will work correctly. Okay, अब इसमें आपको 2 फोल्डर्स फाइल्स दिखेंगी. एक दिखेगी app.po.ts. दिस app stands for your application, po stands for your protector, and ts stands for your TypeScript. Okay, so this protector is a node.js program and runs end-to-end test. This file is responsible in order to run your end-to-end test. Protector is used to control your browser and simulate user actions. This protector is basically used the Jasmine framework as its syntax. ये जो आपको कोड दिख रहा है इस app.po.ts में, this is a Jasmine framework. अबे Jasmine framework क्या है? Jasmine is an open source testing framework for your JavaScript. इसके लिए यूज होता है आपका Jasmine framework. The next file we have is an app.e2e-spec.ts. अब ये फाइल में आपको कुछ सिंटैक्स दिख रहे होंगे, बिफोर ईच, ईट, IT करके, इट करके. इसको भी एक बार ध्यान से समझना. So let's say in unit testing, a test file is comprised of 1 or more it blocks. यहाँ पर आपको एक it block दिख रहा होगा, ये वाला block. Okay, that describe the requirements of your application. What this it block will do, it describe the requirement of your application. It blocks are made up of commands and expectation. ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है, it is actually made up of commands and expectations. अब सबसे पहले देखना है कि commands क्या होती हैं. Commands tell protector to do something with the application, such as navigate to a page or a click on a button. Okay, so it basically command will execute an event handling of your page. Okay, इसके बाद एक और मैंने आपको बताया था expectation. Expectation tells protector to assert. Assert का मतलब क्या होता है? Assume करना. To assert something about the application state, such as the value of a field or the current URL. तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको expect दिख रहा होगा welcome to application, और it should display the welcome page. देखो ये आपका एक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा? जब आपके प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर नहीं होगा. सो आपका एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड इट शुड डिस्प्ले द वेलकम मैसेज. इसके अंदर कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन लिखी रहती है और ये आपको क्या दिखा देगा? वेलकम टू ऐप. तो अगर मैं आपको लोकल होस्ट पोर्ट दिखाऊं तो यहाँ पर ये वही सिंटेक्स आपका दिखा रहा है, वेलकम टू ऐप. ओके,
तो सक्सेसफुली कंप्लीशन के बाद ये आपको क्या दिखा रहा है, आपको एक मैसेज दिखा रहा है वेलकम टू ऐप। ठीक है, इसके बाद लेट्स से इसी के अंदर आपको ना एक बिफोर ईच और आफ्टर ईच ब्लॉक भी दिख रहा होगा इस po.ts वाली फाइल के अंदर। लेट्स से दिस इज माय बिफोर ईच। अब ये देखना बिफोर ईच क्या करता है, टेस्ट फाइल में आल्सो है बिफोर ईच एंड आफ्टर ईच ब्लॉक। आपकी टेस्ट फाइल के दो ब्लॉक्स होते हैं, एक होता है बिफोर ईच और एक होता है आफ्टर ईच, which will be run before or after each it block regardless whether the block passes or fails। तो ये कब एग्जीक्यूट होते हैं, जब ये एग्जीक्यूट होता है, अगर आपका लेट्स से इट ब्लॉक फेल्ड हो जाए एग्जीक्यूशन के लिए, तब ये आपका इट ब्लॉक और बिफोर ब्लॉक एग्जीक्यूट होते हैं। विल अंडरस्टैंड देम इन अ कंप्लीट डिटेल व्हेन वी विल बी वर्किंग ऑन अ टेस्टिंग मॉड्यूल। जब हमारा टेस्टिंग मॉड्यूल आना तो इसको हम पूरे को चेंज भी करके देखेंगे। ओके, सो नाउ इसके बाद आपको एक फाइल दिख रही होगी जेसॉन के फॉर्मेट में। जेसन आपको पता है क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, एंड इट इज बेसिकली यूज्ड इन ऑर्डर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। ये लेट्स से ब्राउजर और सर्वर के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ जेसन। अब लेट्स से अगर आप अपने इस लोकल होस्ट 4200 वाले पेज पे आओ, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं और इसका मैं पेज सोर्स देखूं, so we will have an index page। यहाँ पर एक index.html मेरे पास एक पेज बना हुआ है। ये index.html पेज आपको कहाँ पर मिलेगा, you have to expand your src directory and within this src you will going to have an application directory, और उस एप्लीकेशन में आपके पास होगा यहाँ पर index.html। तो आप इसको अगर एक बार एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास सेम वही पेज आ रहा होगा। बट अब ध्यान से देखो इस HTML पेज में कहीं पर क्या इस टाइप के बटन्स बने हुए हैं, टूर ऑफ हीरोज, CLI डॉक्यूमेंटेशन, एंगुलर ब्लॉक, ये आपको कहीं पे भी index.html में नहीं दिखाई देगा। अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपको देखो HTML का मेन पार्ट कौन सा होता है, हमारा बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में इसने क्या ना ऐप रूट करके एक फोल्डर बनाया हुआ है। तो मतलब ये ना मेरा ऐप का एक फोल्डर बनाया हुआ है। अब इसके अंदर आपको दिख रहा है component.html। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करो, लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख रहा होगा वेलकम टू टाइटल। ये टाइटल आपको किस में दिख रहा है, दीज आर इन एन एक्सप्रेशन, मतलब ये टाइटल एक वेरिएबल बनाया हुआ होगा। अब आप ये समझना ये वेरिएबल कहाँ पर बनाया हुआ होगा, ये वेरिएबल आपको मिलेगा app.module.ts में। ओके, सॉरी इसमें मिलेगा आपको app.component.ts में। यहाँ पर एक वेरिएबल इन्होंने बना रखा है टाइटल के नाम से। सो लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस app component.html, और यहाँ पर अगर मैं स्टेटमेंट लिख दूँ वेलकम टू Angular, and if I press Ctrl S और मैं इसका अगर आउटपुट देखूं, सो ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, और मैं अगर इसका आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पर आगे आपको वेलकम टू Angular ऐप। और अगर आपको ये ऐप अगर चेंज करना हो तो मैंने क्या बताया, ये इन्होंने वेरिएबल बना रखा है। ये वेरिएबल इन्होंने कहाँ पर बना रखा है, ये वेरिएबल है आपका component.ts में। और यहाँ पे लेट्स से अगर मैं डाल दूँ वेलकम ऐप की जगह वेलकम टू Angular 4, Ctrl S अगर मैं करूं, और अगर मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा टेस्ट करूं, सो विल गेट एन वेलकम टू Angular 4। तो ये जो पूरा Angular 4 है, इट इज बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ योर कंपोनेंट्स एंड मॉड्यूल्स। आपका Angular का पूरा फ्रेमवर्क कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स पे वर्क करता है। ओके, तो ये कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स होते क्या है, components are the most basic building block of your user interface Angular application, and Angular application is a tree of your Angular component। जितनी भी क्लासेस वगैरह बनाओगे वो आप कहाँ पर मेंशन करोगे, इन अ component। और मॉड्यूल क्या होता है, a module is a mechanism to group those components। तो लेट्स से अगर मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी तो यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज होकर आ गई Angular 4। अगर मैं आपको component.html में लेके जाऊँ एंड इफ आई रिमूव ऑल दिस, लेट्स से ये मैं हटा देता हूँ UL तक, तो एक डिवीजन टैग में बंद कर देता हूँ, एंड इफ आई ट्राई टू Ctrl S एंड सेव दिस एप्लीकेशन, आपको क्या दिखाई देगा सर, वेलकम टू Angular 4। तो आपका मेन पेज आपको समझना है कि कौन है, component.html इज अवर मेन पेज। अब लेट्स से इसमें अगर आप कुछ और एग्जीक्यूट भी कराओ, लेट्स से यहाँ पर मैं एक हेडिंग टैग देता हूँ H2, और मैं डायरेक्टली देता हूँ माई फर्स्ट
एप्लीकेशन, इस तरीके से लिखता हूँ माई फर्स्ट एंगुलर 4 एप्लीकेशन, कंट्रोल एस, और यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो माई फर्स्ट एंगुलर 4 एप्लीकेशन. So this is the project structure of our Angular 4 application.